गाइस, दिस इज शिखा एंड वेलकम टू शेयरtastic। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी हाइव क्लास 9 का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है जिसमें हमने एल्विन ग्लेनी की बायोग्राफी पढ़ी थी। एक्चुअली ये दोनों पार्ट ही बायोग्राफीज हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान की बायोग्राफी। तो जैसे कि आप जानते हैं, बिस्मिल्लाह खान इंडिया के मोस्ट रिनाउंड म्यूजिक प्लेयर में से एक हैं और उन्हें शहनाई का म्यूजिक मास्टर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहले इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, उसके बाद हम चलेंगे अपनी हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो हम पढ़ेंगे स्क्रीन पर जाके। तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। So basically the story goes as Emperor Aurangzeb once banned the playing of pungi in his royal court. Pungi is a musical instrument, as you can see on the board. I hope some artist is not seeing my video right now, otherwise he is gonna kill me for this silly drawing. So basically what happened after that, when Emperor Aurangzeb banned it, a barber of the royal court who used to visit the royal court frequently thought of a plan as to how to modify pungi so that the emperor started liking it. So what he did, one day he took a hollow stem and he did 7 holes on it, and when he played it in the royal court in front of Shah, he became very happy, and thus the modified version of pungi, that is Shehnai, came into existence. The name of Shehnai came from 2 words, that is Shah because it was played in front of Shah, and Nai because it was reinvented by a knight, that is barber. So that is how Shehnai came into existence. Now as the story goes on, we came to know about Bismillah Khan. The author first introduced Bismillah Khan as a 3-year-old boy who used to visit his maternal uncle with his mother, and once when he was on his way to his uncle's house, he saw that his uncles were practicing Shehnai in their house. He kept sitting there and he was fascinated by the sound of the Shehnai. So at the age of 5, he used to visit Bihari Ji temple where he played Shehnai after learning it from his uncle, and then when he completed his session, the local Maharaj gave him 1.25 kg laddu as a reward and after his entire recital. Bismillah Khan was born on 21st March 1916 in Bihar in a town named as Tugrau. He is very fond of river Ganga and he used to sit alone there for hours and hours practicing his Shehnai over there. So as Bismillah Khan grew, his popularity became more and more, and once he was invited to Allahabad Music Conference for a music session. He was so fond of playing Shehnai that he used to sit alone on the side of Ganga and play Shehnai there. So in 1938, the government of India introduced All India Radio, and that's when Bismillah Khan got his major break. He was invited on the All India Radio in 1938 at that time to play his Shehnai over there, and once he played the Shehnai on All India Radio, he became famous all over the country. Khan was popular not only in India but across India also. Once he went to Afghanistan for a music session, and the Shah and the king of Afghanistan was so impressed with Bismillah Khan's performance that he gave him priceless carpets and other souvenirs as a symbol of love and respect for his music. Bismillah Khan became so popular that once a director saw him playing Shehnai in one of the music festival, and he approached to Bismillah Khan for making a movie, and that movie was named Goonj Uthi Shehnai. That was a Bollywood blockbuster of that time, and one of the movie song Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya was one of the national chartbuster of that time. Every Indian used to him that song at that time. He was always loved and respected by all. The king of Tehran named one of the famous museum of Tehran after Bismillah Khan's name. Now, as Bismillah Khan's popularity grew and grew, he was awarded with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan as a symbol of love and respect. In 2001, he was awarded
India's highest civilian award, that is Bharat Ratna, which is given only to those Indians who contributed a lot towards their country. Once, when Bismillah Khan was in USA, one of his students approached him and asked him to head a musical school in USA itself. He also promised him to recreate Banaras in USA so that Bismillah Khan didn't feel homesick. But Bismillah Khan refused his student's request because he was very fond of his country and he loved his country so much that he cannot even think of being residing in some other country. So he politely refused the request of his student and asked him if the student can replicate all the temples of Banaras, then can the student bring river Ganga from India to USA so that he cannot miss river Ganga, his state Bihar, his home Dubra, and especially the unique Matha which he was very fond of. So guys, this was the English explanation. Let's proceed towards the screen for word-to-word Hindi explanation. The Sound of Music Part 2 Para 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. Emperor Aurangzeb ने अपने दरबार में पुंगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, उसको अपने दरबार में बैन कर दिया था क्योंकि उन्हें उसकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. उन्हें उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अप्रिय लगती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में से एक का नाम पुंगी हुआ करता था. Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन इसमें मॉडिफिकेशन होगा, इसको रिवाइव किया जाएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. राजघराने का एक बार्बर, एक नाई, जिसके घर में बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हुआ करते थे, उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो इसकी टोनल क्वालिटी को, इसकी आवाज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करके रहेगा. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. टहनी के शरीर पर, उस टहनी पर 7 छेद बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस खोखले पाइप को बजाया, जिसमें उसने क्या किया कि 7 छिद्रों में से कुछ छिद्र खुले रखे और कुछ छिद्र बंद कर दिए. बजाते बजाते वो कुछ छिद्र खुले रख रहा था और कुछ छिद्र पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर रहा था. तब उसने देखा कि उसमें से जो आवाज़ निकल रही थी वो पुंगी से कहीं ज़्यादा बेटर थी और पुंगी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा उससे डिग्रेडेड थी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को दरबार में बजाया और सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब इस इंस्ट्रूमेंट को, जो पुंगी से बहुत ज़्यादा अलग था, एक नाम दिया जाना था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. जैसे कि कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसको शाह के दरबार में बजाया गया और इसको एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए उन्होंने इन दो वर्ड्स को कंबाइन करके इसका नाम शहनाई रख दिया. शहर फ्रॉम द शाह वर्ड एंड नाई फ्रॉम द नाई वर्ड विच वॉज प्लेड बाय अ बार्बर. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पुंगी थी वो कुछ ऐसी दिखा करती थी और जो शहनाई जो उस बार्बर ने मॉडिफाई करके बनाई थी वो ऐसी थी जो पुंगी के कंपैरिजन में लंबी थी. और इस पे देखिए ये 7 छिद्र जो बने हुए हैं, इनको कभी दबाकर कभी छोड़कर बहुत ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग प्रोड्यूस किया जाता था. पैरा 2. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. अब शहनाई की साउंड को बहुत ज़्यादा शुभ माने जाने लगा था. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और यही रीज़न है कि इसको आज भी मंदिरों में बजाया जाता है और उत्तर भारतीय शादियों में, जो शादियाँ उत्तर भारत में होती हैं, वहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. वहाँ आज भी इसके बिना शादी को अधूरी माना जाता है. In the past,
The Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पुराने ज़माने में शाही दरबार में रखे जाने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक शहनाई भी हुआ करती थी, जो नौबत या फिर ट्रेडिशनल इंसेंबल में से एक मानी जाती थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अभी तक भी, कुछ टाइम पहले तक भी इसको केवल मंदिरों और शादियों में ही यूज़ किया जाता था. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान. इस इंस्ट्रूमेंट को शादियों और मंदिरों में से निकाल के क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. पैरा थर्ड. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के हुआ करते थे, तब वो डुमराव जो बिहार में है वहाँ पर एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. वो प्रतिदिन पास के बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे और वहाँ जाकर भोजपुरी चैत, एक सॉन्ग का नाम है, वो गाया करते थे, जिसके अंत में उन्हें एक 1.25 kg का बड़ा लड्डू मिला करता था और वो लड्डू उन्हें वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा इनाम स्वरूप मिला करता था. This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न. ये आज से 80 साल पहले की बात है और उस छोटे से लड़के ने इतना सफ़र तय किया है कि आज उसे भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न मिला है. पैरा 4. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के बहुत ही अधिक प्रख्यात संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते हैं. His grandfather रसूल बख्श खान was a शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज हुआ करते थे. His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य फैमिली के मेंबर्स भी शहनाई प्लेयर हुआ करते थे. पैरा 5. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. छोटे बच्चे ने अपने जीवन में संगीत को काफ़ी पहले ही उतार लिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, 3 साल की उम्र पर जब उनकी माताजी एक दिन उनको उनके मामा के घर ले गई, जो बनारस, जिसको अब वाराणसी कहा जाता है. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह ये देखकर बहुत हैरान हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि उनके मामा शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे, जहां उनके मामा शहनाई बजाने का काम किया करते थे. Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श वहाँ शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों बैठे उन्हें देखते हुए सोचते रहते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में लेसन लेने शुरू कर दिए, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना शुरू कर दिया और घंटों बैठ के वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे. कभी कभी वो पूरा दिन बैठ के शहनाई बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. आने वाले कई सालों तक बालाजी का मंदिर, मंगल मैया का मंदिर और गंगा का घाट उस छोटे अप्रेंटिस के लिए, छोटे कलाकार के लिए सबसे फेवरेट प्लेस हुआ करते थे, जहां वो अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल एकांत में कर सकते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई.
गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें अपने राग को इम्प्रोवाइज और इन्वेंट करने की मोटिवेशन देता था। गंगा के बहते हुए पानी को देखकर वो अपने रागों में ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट करते थे, ऐसी शुद्धियाँ करते थे और ऐसे नए राग इन्वेंट करते थे जो पहले शहनाई की रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर माने जाते थे, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये शहनाई के द्वारा नहीं क्रिएट किया जा सकते, शहनाई के द्वारा नहीं बजाए जा सकते। पैरा 6। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 वर्ष की आयु होने पर बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, अपनी बारी ख़त्म होने पर उस्ताद फैयाज खान ने उस छोटे बच्चे की पीठ को थपथपाया और बोले, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग होने के साथ ही बिस्मिल्लाह को अपने करियर का, अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला। He soon became an often heard शनाई प्लेयर on radio. जल्दी ही वो रेडियो पर बार बार आने वाले शनाई प्लेयर बन गए। उनका संगीत रेडियो पर बार बार सुनाया जाया करता था। पैरा 7. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने राष्ट्र को अपने शहनाई के द्वारा अभिवादन किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny's speech. उस दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से दर्शक दीर्घा के सामने राग काफ़ी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपने दिल का सारा संगीत निचोड़ कर रख दिया। उस दर्शक दीर्घा में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे, जिन्होंने बाद में अपनी प्रख्यात ट्रिस्ट विद डेस्टिनीज स्पीच दी। पैरा 8. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अफगानिस्तान में थी, जहाँ के राजा ज़हीर शाह उनकी परफॉर्मेंस देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें बेशकीमती पर्सियन कारपेट और अन्य निशानियां उपहार स्वरूप दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित होने वाले केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक सम्मेलन में बिस्मिल्लाह का संगीत सुनकर इतने प्रभावित हुए डैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही एक पिक्चर बना दी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रही, सुपर डुपर हिट रही और बिस्मिल्लाह खान का एक गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया उस समय देश भर में छा गया। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to 2. इस शानदार सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी सफ़र केवल 2 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपना। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादी अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis.
मैं फिल्मी जगत की चकाचौंध में आके अपने बेसिक टर्म्स को नहीं भूल सकता। मैं फिल्मी दुनिया में खोकर अपने संगीत को नहीं भूल सकता। बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़ोर देकर ये बात कहा करते थे। पैरा 9 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पहचान और इनाम काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी मात्रा में आने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. United States of America के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बिस्मिल्लाह खान बने। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने विख्यात हो गए कि तेहरान ईरान की कैपिटल है, कि तेहरान में भी उनके नाम से एक स्मारक बनाया गया जिसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैरा 10 नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय अवार्ड उनको दिए गए। पैरा 11 In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, इस सर्वोच्च पुरस्कार को अपने सीने पर लिए और अपनी आंखों में खुशी की चमक लिए वो बोले, All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। ये हिंदुस्तान का सबसे धनी परंपरा है और अब तो पश्चिम भी हमारी संस्कृति, हमारी संगीत से प्रभावित होकर यहाँ पर संगीत सीखने के लिए आ रहा है। पैरा 12 In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे संसार की यात्रा करने के बाद भी खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, बनारस और डुमराव के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और ये दो जगह उनकी सर्वोच्च पसंदीदा जगहों में से एक है। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक विद्यार्थी ने यूएसए में उनसे संगीत का स्कूल खोलने की प्रार्थना की और उनसे ये भी वादा किया कि वो यूएसए में बनारस जैसा माहौल बना देगा और वो वहाँ के सारे मंदिर जो बनारस हैं, वहाँ के सारे मंदिर का प्रतिरूप यूएसए में ला देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने अपने उस विद्यार्थी से कहा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पर ले आएगा। Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." बाद में उन्हें ये भी कहते हुए सुना गया था कि इसलिए जब मैं किसी भी अनजान देश में होता हूँ, मेरा मन हिंदुस्तान को देखने के लिए मचल उठता है। While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. जब मैं मुंबई में होता हूँ, तब मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। And while in Banaras, I miss the unique मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव का लाजवाब मट्ठे के बारे में सोचता हूँ। पैरा 13 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी और सांस्कृतिक धरोहर का एक सटीक उदाहरण है।
One that effortlessly accepts जैसे devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक ऐसा उदाहरण जिसमें उनके जैसा एक मुस्लिम हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में बैठकर प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। So guys, it's time for some questions and answers. So our first section consists of MCQs. The first question is, who banned the playing of pungi in the Royal Palace? Royal Palace में पुंगी बजाने पर किसने रोक लगाई थी? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? So जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा, ये औरंगजेब था जिसने अपने शाही दरबार में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी। So the correct answer would be D, औरंगजेब। Second question is, बिस्मिल्लाह खान was deeply attached to. बिस्मिल्लाह खान deeply attached थे सतलुज से, गंगा से, नर्मदा से या गोदावरी से? So as we all know that Bismillah Khan is deeply attached to the Ganga river. So the correct answer would be B. Third question, which rag was played by Bismillah Khan from the Red Fort? As we all know, on Independence Day, in the presence of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, Bismillah Khan played Rag Kafi from the Red Fort. So the correct answer would be C, Rag Kafi. Fourth question, which film is named after Bismillah's instrument? बिस्मिल्लाह के इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? शहनाई पे कौन सी मूवी बनी है? शहनाई की आवाज, शहनाई का राजा, शहनाई वाला और गूंज उठी शहनाई। तो जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, वन ऑफ द डायरेक्टर अप्रोच बिस्मिल्लाह खान आफ्टर ही सॉ हिम प्लेइंग इन अ फेस्टिवल एंड द मूवी ही मेड वाज नेम्ड गूंज उठी शहनाई। इसका एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। अगर आपने सुना हो या आपके पेरेंट्स ने सुना हो। So guys, these were some MCQs. Now let's proceed towards a very short answer question session. So our first very short question is, which family did the barber belong to? Barber कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? Barber belonged to a family of musicians. उसकी फैमिली में जितने भी पर्सन थे वो सब कहीं ना कहीं म्यूजिक को बिलोंग करते थे। सेकंड क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड शहनाई? शहनाई किसने इन्वेंट की थी? शहनाई उस नाई ने, उस बार्बर ने इन्वेंट की थी जो रॉयल कोर्ट में जाता रहता था। जब उसने देखा कि पुंगी को औरंगजेब ने बैन कर दिया है तो उसने सोचा कि क्यों ना पुंगी का एक मॉडिफाइड वर्जन लाया जाए, इसलिए उसने शहनाई को इन्वेंट किया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी होल्स डज ए शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी? शहनाई की बॉडी पर कितने होल्स होते हैं? शहनाई की बॉडी पर 7 होल्स होते हैं, जिसमें से कुछ होल्स को खुला छोड़कर और कुछ होल्स को दबाकर साउंड प्रोड्यूस की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द शहनाई गेट इट्स नेम? शहनाई को उसका नाम, शहनाई कहाँ से मिला? शहनाई को उसका नाम 2 वर्ड से मिला, शाह और नाई। शाह इसलिए क्योंकि बाबर ने सबसे पहले शहनाई जो बजाई थी वो रॉयल कोर्ट में बजाई थी इन फ्रंट ऑफ द शाह, इन फ्रंट ऑफ एम्परर, तो वहां से उसको फर्स्ट वर्ड मिला शाह। और क्योंकि वो नाई ने बजाई थी, बाबर ने बजाई थी, इसलिए उसे सेकेंड वर्ड आया नाई, तो शाह प्लस नाई हो गया हमारा शहनाई। फिफ्थ क्वेश्चन, Where did Bismillah Khan usually sing at the age of 5? 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान कहाँ पर गाया करते थे? तो इसका आंसर है 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैत गाया करते थे। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ वॉज ही रिवार्डेड एंड बाय हुम? उनको क्या रिवॉर्ड मिलता था और किसके द्वारा? उनको रिवॉर्ड मिलता था भोजपुर के राजा के द्वारा। और क्या रिवॉर्ड मिलता था? 1.25 kg, 1 किलो 25 ग्राम का उन्हें एक लड्डू मिला करता था अपनी हर परफॉर्मेंस के बाद में। So guys, these were some very short answer questions. I hope you like the video. पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आगे भी आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आ सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।